prosperous morning to all of you present here today. Our nation is built on its diversity and we honor the symbols and traditions who have made our country what is today. In India, all festivals are celebrated with lot of excitement and energy. Diwali is among the most popular festival in India. This festival signifies the universal goal of eliminating ignorance by pursuing knowledge and having a greater understanding of one's surroundings. Diwali is an occasion to celebrate light over darkness. Light symbolizes knowledge and worship as the Lord itself. We light the lamp to go deep down into the ocean of knowledge as the greatest of all forms. Now may I request our Honorable Manager, Reverend Father Peter, Principal Sister Beatrice, Sister Cindy, and all the cabinet members to come on the stage and light the diyas. Light represents the presence of yours, presence of God, presence of life, presence of all goodness. Loving Father, on this auspicious day, we ask you to enlighten us, our mind, our hearts, our thoughts, our small city of Ramnagar, so that we not only in celebration, external way of spending money, finding joy in purchasing things, crackers, decorations, food items, we may not limit ourselves to that. Rather, we will find joy, happiness in our minds and thoughts. In our hearts, we keep always you as God, the illuminator, as Ram, the God, came back to Ayodhya. The people of Ayodhya rejoiced. They regained what they had lost, the God, the goodness, prosperity, life in itself. As we illuminate this diyas, we ask you, Lord, to enlighten us, to remove all our darknesses of fraud, untruthful way of behavior, our thoughts of cheating, our thoughts of saying lies. May all these darknesses go from us, and may you be our guide and protector. We ask you to bless each one of us. We ask you to bless the entire St. John's family, that together with the people of Ramnagar, we ourselves will illumine with goodness, goodwill, with truthfulness and hard work. We make this prayer in your good name. Amen. All of you extend your hands to the diya. All of you extend your hands to the diya and receive the flame of goodness, joy, happiness, and receive to yourself. Take it to your heart, take it to your hearts. Thank you. Sit down. Thank you, Father, sisters, and all my dear friends. One of the major features of Diwali is the famous story of Lord Rama and his wife, Goddess Sita. I would like to invite the students of class 6-7 to tell the story of Sri Ram and Sita through a skit. मम्मा, यह सब लोग क्या कर रहे हैं?
बेटा ये सब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। ओह, मतलब पटाखों और ढेर सारी मिठाइयों का त्योहार। हाँ बेटा वही त्योहार। लेकिन क्या आपको पता है कि हम ये त्योहार क्यों बनाते हैं? आपने कभी बताया ही नहीं, हम क्यों मनाते हैं यह त्योहार। तो चलो आज बता देती हूँ। अयोध्या के एक राजा थे दशरथ। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र श्री राम थे। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र भरत थे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। जब राजा दशरथ बूढ़े हो गए तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब राजगद्दी उनके सबसे बड़े बेटे श्री राम को दे देनी चाहिए, मतलब अब श्री राम को राजा बना देना चाहिए। परंतु यह निर्णय उनकी पत्नी रानी कैकेयी को पसंद नहीं आया। वो नाराज होकर कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ उन्हें मनाने गए तो उन्होंने 2 वरदान मांगे। कौन से 2 वरदान? पहला भरत को अयोध्या का राजा और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष? हाँ बेटा 14 वर्ष। राजा दशरथ ये सब सहन नहीं कर पाए, वो बीमार रहने लगे। श्री राम अपने पिता की दुविधा समझ गए, वो खुद से ही वनवास जाने का मन बना लिया। इसमें उनके साथ उनकी पत्नी रानी सीता वो भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। राजा दशरथ ये सब देख नहीं पाए, वो मृत्यु को लीन हो गए। पूरा हुआ। वन में बहुत सी कठिनाइयों को झेलने के बाद जब माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ जब राम वापस आए तो लोगों ने घी के दिया जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसलिए हम दिवाली में दिया जलाते हैं। वो दिवाली का मतलब है दीपों की पंक्ति। वाह, इसलिए हम दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते और मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ बेटा, और लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? लेकिन आप मैं कभी और बताऊंगी। अभी घर जाकर दिवाली की तैयारियां भी तो करनी है। ठीक है। मम्मा, वो देखो वहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, पहले चलकर उसे देखते हैं, फिर घर चलकर मैं भी आपकी मदद करूँगा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, जगत जननी सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे
Respected Sister V.R. Tracy, the Principal, dear Sister Seniors, the teachers, staff members and students. I wish you all happy Diwali. May the good Lord bless you all with wisdom, knowledge, understanding. As I have already said in the prayer, prayed for you, for your people, the people of city of Ramnagar. I am told to speak something about Diwali. Diwali already you have seen what it is, and I am not an authority to speak much about Diwali. What I understand is every festival has got its own richness, its own meaning. प्यारे बच्चों, जो हम त्योहार के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, चाहे दिवाली हो या और कोई भी, होली, क्रिसमस, ईद, जितने भी त्योहार के बारे में हम लोग सोचते हैं, सबसे पहले हमारे दिल में मन में ख्याल आते हैं नया कपड़ा, कुछ मिष्ठान, कुछ रीति रिवाज, कुछ अलग से प्रयोग इत्यादि। लेकिन उसका शुरुआत क्या होगा, और इससे जरिए उन पूर्वजों ने, पंडितों ने, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने क्या सोच कर रखा होगा, इसकी समझ कम होते जाते हैं। और एक्सटर्नल चीज़ों में जो मनाना है, त्योहार, नाचना कूदना और भोजन, ड्रेस, डेकोरेशन इत्यादि चीज़ों में हम ज़्यादा व्यस्त दिखाता है, और उसकी जो सच्चाई जो है उस चीज़ को अपनाना भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ दिवाली एक सुंदर सा त्योहार है, फेस्टिवल, among the all festivals, good festival. And it is also sometimes it is also said, I do not know, I am maybe wrong to understand, it is a festival of some rich people, business people, because lot of purchase, sale takes place, especially today, dhanteras, such things or things, and it is the festival of these sellers, like that. May not be true, तो whatever may be, हर त्योहार का एक मकसद होता है, उससे कुछ बनना होता है। ये सुंदर त्योहार भी हमें बताती है, जिस बांधी दिया को हमने जलाई, दिया आपको मालूम है मिट्टी से बनी हुई, वो जो वेसल है दिया मिट्टी से बनी हुई, उस चीज़ को सजाया, उसमें तेल डाली, उसमें हम लोग रोई का धागा से उसके लिए दिया बना दी, बत्ती बना दी, उसको हमने जलाया और जलते रहेगी। वो एक जीवन का स्रोत है। जब ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, दिया नहीं है, बत्ती नहीं जलती है, बत्ती बुझती है, जो बताते हैं वो जिंदगी समाप्त जैसे बताता है, समझता है। उसी प्रकार ये जो दिया, छोटे छोटे दीपक जो जलती हैं, हमें स्मरण दिलाती है कि हमें उस प्रकार से बनना है। ये नहीं है दिवाली आ गई, हाँ चलो कपड़ा खरीदे, दिवाली आ गई, हाँ पटाखा खरीदे, हाँ दिवाली के कुछ त्यौहार मिठाई बनाए या कुछ सजावट, खेल कूद, पिकनिक इत्यादि इत्यादि, फलाने पे जाना आना क्योंकि छुट्टी है, यह सब अपने आप में एक सीमित है, एक इसका सोजक है। ये चीज़ें हमें और प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हजारों लाखों साल पहले अगर अयोध्या लोगों के लिए खुशी का दिन होता, उन लोग एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे थे, जो अंधकार उनको जो खो गए थे, राम उनको प्राप्त होनी चाहिए था, जो लौट आए 14 साल बताते हैं, 14 साल हो उसकी लंबी अवधि हो, जो लौट आते हैं वनवास के बाद, उन्होंने उस खुशी को जागर किया, दिया जला कर, दीपक जला कर। कई बार जिंदगी में संसार में रहते वक्त हम लोग भी हमारे राम को खो जाते हैं, कहाँ हमारे अंतर्गत से राम चढ़े जाते हैं, हमें नहीं पता। राम क्या है? राम प्रतीक है सच्चाई का, राम प्रतीक है अच्छाइयों का, राम प्रतीक है, सूचक है, चिन्ह है
जो सर्व संपन्न गुणों से, पवित्रता का, सुंदरता का, सबका सूचक है राम। भले के शब्द राम से दी हुई हो, भगवान का गुण, वो गुण हम भी जब जब खो जाते हैं, कभी हम दुखी, निराश, चिंतित, तो हम उम्मीद करते हैं एक दिन अच्छा दिन आएगा, एक दिन सुनहरा आ जाएगा, एक दिन शांति का एहसास होगा, एक दिन बीमारी से छुटकारा पाएगा, तमाम टेंशन वरी से हम लोगों का जिंदगी सुधरेगा। वो उम्मीद जब जग जाती है, वो दिया के रूप में होती है। ये जरूरी नहीं है बहुत बड़ी आग के रूप में आ जाए, आग नष्ट कर लेता है, लेकिन दिया वो जब जलती रहती है वो अच्छाई का सूचक हो जाता है। ये सब सूचक है। मैंने कहा प्रत्येक त्योहार अपने अपने निशानी है। आप लोग रास्ते पे कहीं सूचक देखते हैं, कहीं क्या करना, क्या सिग्नल्स होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक त्योहार और ये दिया जलाना सब कुछ एक सूचक है। वो अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता, वो आगे हमें दिशा देते हैं। वो सूचक हमें बताता है किस दिशा पे जाना है, उससे जरिए उसके पीछे सच्चाई पीछे निहित है, उसको हमें अपनाने की जरूरत है। ये दिया जलाना और ये दिवाली इसमें मनाना हमें ये बताते हैं, जिस बांध ये दिया दूसरों को रोशनी देता है, गर्माहट दे देते हैं, उसी प्रकार हमारी जिंदगी बननी चाहिए। तो हमें एक जलते हुए दीपक जैसे बननी चाहिए प्यारे बच्चों। We need to become small lamps, small दीपक हमें बननी हो। And when we have in order Deepali, it is in order of race or ali of diyas we become. And when I become, when you become, everybody becomes, society becomes beautiful, peaceful, prosperous, and we grow. That is what we need to understand the meaning of it. I wish you all prosperous, joyous, happy Diwali. I remind you all, don't go for external things, destruction and chaos, pollution. Rather, preserve yourselves with good understanding of it. And keep Ram, goodness, truthfulness, sincerity, honesty. Those kind of good values, when you cherish, we can say there is Ram in you, there is Diya in you, there is little lamp in you, and that will illuminate darknesses of various things of our society. I want you to be, all of you to be such kind of little lamps, not only in St. John's campus, but all city of Ramnagar. I thank and wish all the performers on this day, on the stage, beautiful decorations of Rangoli on the theme of Diwali, and little performance of your dance drama, special assembly. All those who have worked behind, I thank them, all of you, and I wish all of you once again Happy Diwali.